We have system programming and operating system as the name of our subject. The first three units are based on your system programming, and the last three units are based on your operating system, right? So the fourth unit is what? Operating systems. So let's discuss the syllabus first. So in this unit, ऑपरेटिंग सिस्टम्स का इंट्रोडक्शन आपको देखना है. डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स कौन सी है वो देखना है. उसके बाद रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है वो देखना है. सिस्टम कंपोनेंट्स, ओएस सर्विसेज, सिस्टम स्ट्रक्चर में लेयर्ड अप्रोच आपको स्टडी करना है. आफ्टर दैट प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रोसेस कंसेप्ट, प्रोसेस स्टेट्स, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, थ्रेड्स, प्रोसेस शेड्यूलिंग, types of process schedulers, types of scheduling, primitive, non-primitive. Okay, scheduling algorithms means FCFS, that is first come first serve, shortest job first, that is SJF, RR, that's for round robin and priority basis. After that, you have to study deadlocks, methods of handling deadlocks, deadlock prevention, avoidance and detection, and recovery from the deadlock. So this is quite big unit. Okay, so you have to study different parts on this unit. So let's discuss the software first. Okay. So types of software, we know that we have two types of software, system software and the application software. Okay. तो system software क्या करते हैं? It manages the operation of computer itself. Computer का पूरा operation कौन manage करता है? System software. After that application software. Okay. So which performs the actual work the user wants. जो user को चाहिए, जो work user को चाहिए, वो perform करता है application सॉफ्टवेयर. ओके, तो जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में किस कैटेगरी में आता है? ऑपरेटिंग सिस्टम कम्स इन द कैटेगरी ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर. ओके, दिस ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस द ऑपरेशन ऑफ योर कंप्यूटर. Okay, so we can give a definition like this: an operating system is a program that acts as an interface between the user and the computer hardware and controls the execution of all kinds of programs. Okay, so the category of your operating system is nothing but your system program. Okay, and ये क्या करता है? It acts like a interface between the user and the computer hardware. Computer hardware मतलब क्या? आपकी कंप्यूटर सिस्टम. ओके, और आप हो यूजर. अगर यूजर को कंप्यूटर सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करना है तो उसको क्या चाहिए? ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए. वो कौन सी भी हो सकती है. ओके, विंडोज 10 हो सकती है, विंडोज 7 हो सकती है, लिनक्स हो सकती है, यूनिक्स हो सकती है. कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज करके कंप्यूटर के सिस्टम के साथ, कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ क्या कर सकते हो? इंटरेक्ट कर सकते हो. ओके, ऑल्सो द ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करती है? इट कंट्रोल्स द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ प्रोग्राम्स. जितने प्रोग्राम्स आप रन करना चाहते हो या जितने प्रोग्राम्स आपके कंप्यूटर सिस्टम में है, वो सारे कंट्रोल कौन करता है? आपके ऑपरेटिंग सिस्टम करती है. Okay, so this is very important about your computer system. It should have installed one operating system in your computer. Okay, so you can see the diagram over here. Okay, so the lowest layer is nothing but the hardware. Okay, so hardware मतलब क्या? आपका CPU, RAM, input output devices. ओके, हार्डवेयर इज नथिंग बट योर सीपीयू, रैम एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस. अगर यूजर को इनके साथ इंटरेक्ट करना है तो आपको क्या करना है? मिडल जो लेयर है आपकी सॉफ्टवेयर लेयर, उससे इंटरेक्ट करना पड़ेगा. ओके, तो मिडल लेयर में क्या है? पहले ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर से कुछ मतलब असेंबलर, कंपाइलर एंड ऑल दैट थिंग्स, टेक्स्ट एडिटर्स एंड ऑल दैट. अगेन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, फॉर एग्जांपल मीडिया प्लेयर, हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एडोब रीडर, दीज आर नथिंग बट सम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. तो सॉफ्टवेयर ये जो है वो मिडल पार्ट है. अगर आपको कंप्यूटर सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करना है तो जो है मिडल लेयर जो है सॉफ्टवेयर, और वी कैन से द ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपको इंपॉर्टेंट है. और आफ्टर दैट द यूजर लेयर इज देयर. Okay, so user 1, user 2, number of user n can interact with your computer system with the help of your operating system. So this is the very important diagram. If you ask question like this, what is operating system, explain with detailed diagram, so then you have to draw this diagram. You have to explain each and every layer, and you have to explain about the operating system. Okay, so the examples of operating systems are nothing but Windows XP, Windows 7, Linux, Unix, Windows 8, Windows 10. Okay, so these are nothing but your examples of operating system. ओके, तो अभी हमें पता चला है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है. ऑपरेटिंग सिस्टम इज नथिंग बट इट इज एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड द यूजर एंड हार्डवेयर के बीच में ये इंटरफेस बन के एक्ट होती है, और इट कंट्रोल्स ऑल द काइंड्स ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ योर प्रोग्राम्स. ओके, इट कंट्रोल्स द एग्जीक्यूशन ऑफ योर प्रोग्राम्स. तो डिफरेंट फंक्शंस भी है ऑपरेटिंग सिस्टम के. तो वो क्या है फंक्शंस? लेट्स डिस्कस.
So these are functions of your operating system: memory management, processor management, device management, file management, security, control over system performance, job accounting, error detecting aids, coordination between other software and users. So these are the number of functions of your operating system. So let's discuss one by one. Okay, so the first function of operating system is memory management. Okay, so memory management refers to management of primary memory or main memory. Okay, तो ये जो function ये perform किया जाता है by the operating system, and this means that we are going to manage our primary memory, or we can say the main memory. Okay, so ये basically main memory है क्या? So main memory is a large array of words or bytes where each word or byte has its own address. Okay, तो main memory क्या है? Large array of words है, और वी कैन से द बाइट्स है, और हर एक वर्ड और बाइट को उसका एक ओन एड्रेस है. ओके, सो मेन मेमोरी प्रोवाइड्स अ फास्टेस्ट स्टोरेज दैट कैन बी एक्सेस डायरेक्टली बाय द सीपीयू. ओके, तो हमारे पास दो मेमोरीज होती है, सेकेंडरी मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी, और मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी. तो इनमें से जो आपकी मेन मेमोरी है वो क्या है? फास्टेस्ट है. ओके, and the contents which are stored in this memory directly accessed by your CPU, and that's why it is at fastest. Okay, so for a program to be executed it must be in the main memory. तो कोई भी प्रोग्राम हो आपका, अगर जो आपको एग्जीक्यूट करना है तो वो पहले कहाँ पे आना चाहिए? मेन मेमोरी में आना चाहिए. इट मस्ट बी इन द मेन मेमोरी. ओके, सो एन ऑपरेटिंग सिस्टम डज द फॉलोइंग एक्टिविटीज फॉर मेमोरी मैनेजमेंट. तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मेमोरी मैनेजमेंट में क्या रोल है? ओके, कैसे मेन मेमोरी हमारा एक हार्डवेयर पार्ट है, रैम हमारी एक चिप है. ओके, तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करती है? इट कीप्स ट्रैक्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी. ओके, ट्रैक करती है मतलब क्या? कि मेन मेमोरी का कौन सा पार्ट यूज किया है, किसने यूज किया है, कौन सा पार्ट फ्री है, ये सारा इंफॉर्मेशन, ये सारी इंफॉर्मेशन कौन रखता है? ऑपरेटिंग सिस्टम रखता है. Also in multi-programming, the OS decides which process will get memory when and how much. Okay, अगर हम multi-programming use कर रहे हैं, okay, तो there are multi-programs, or we can say the multiple processes are there. Then OS will decide which process will get memory, कब मिलेगी और कितनी मिलेगी, ये सारी चीजें operating system decide करती है. Okay, third function is performed by your OS is that allocates the memory when a process requests it to do so. ओके, अगर प्रोसेस को मेमोरी चाहिए देन इट विल अलोकेट, ऑपरेटिंग सिस्टम विल अलोकेट मेमोरी फॉर दैट प्रोसेस. ओके, ऑल्सो इट डीअलोकेट्स द मेमोरी व्हेन द प्रोसेस इज नो लॉन्गर नीड्स इट और हैज बीन टर्मिनेटेड. अगर हमने कोई प्रोग्राम क्लोज कर दिया है तो देन दैट विल कम आउट ऑफ योर मेन मेमोरी, मींस डीअलोकेशन हो गया यहाँ पे मेमोरी का. ओके, सो दीज आर सम फंक्शंस व्हिच आर परफॉर्म बाय योर ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर द मेमोरी मैनेजमेंट. सो next slide. So next one is the processor management. Okay, processor management means what? In multi-programming environment, the OS decides which process gets the processor when and for how much time. अभी यहाँ पे process क्या है? आपका कोई भी एक छोटा प्रोग्राम. ओके, प्रोग्राम को यहाँ पे क्या बोला गया है? प्रोसेस बोला गया है. तो अगर आप मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट यूज कर रहे हो तो आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करेगी कौन से प्रोसेस को कब प्रोसेसर मिलेगा और कितने टाइम के लिए मिलेगा. ओके, और इस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? प्रोसेस शेड्यूलिंग. ओके, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम डज द फॉलोइंग एक्टिविटीज फॉर एन प्रोसेसर मैनेजमेंट. तो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसर के लिए क्या क्या करती है? अगेन इट कीप्स द ट्रैक्स ऑफ प्रोसेसर एंड स्टेटस ऑफ प्रोसेस. ओके, प्रोसेसर के पास कौन सी प्रोसेस अभी है, कितने टाइम के लिए है, ये सारी इंफॉर्मेशन का ट्रैक रखेगी ऑपरेटिंग सिस्टम. उसके बाद स्टेटस ऑफ प्रोसेस, प्रोसेस टर्मिनेट हो चुकी है, प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है, प्रोसेस वेटिंग स्टेज में है, ये सारा स्टेटस जो है वो भी हैंडल बाय योर ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, सो द प्रोग्राम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टास्क इज नोन एज ट्रैफिक कंट्रोलर. ओके, तो ये सारी चीजें जो करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके लिए स्पेसिफिक प्रोग्राम है और उसका नाम है ट्रैफिक कंट्रोलर. ओके, तो ये ट्रैफिक कंट्रोलर सारी इंफॉर्मेशन प्रोसेसर की भी रखेगा और उस प्रोसेस का स्टेटस भी रखेगा. अगेन इट अलोकेट्स द प्रोसेसर टू अ प्रोसेस. ओके, प्रोसेसर मतलब हमारा सीपीयू. ओके, तो जो भी प्रोसेस को रिक्वायरमेंट है देन ऑपरेटिंग सिस्टम विल अलोकेट प्रोसेसर फॉर दैट प्रोसेस. अगेन इट विल allocate द प्रोसेसर व्हेन द प्रोसेस इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड. अगर प्रोसेस टर्मिनेट हो चुकी है, execute okay properly, it will deallocate the processor from that process. Okay, so these are some functions which are performed by your operating system for the processor management. After that, device management. Okay, so an operating system manages device communication via their respective drivers. Okay, जैसे हमें पता है अगर हमें sounds use करने हैं, हमें mic use करना है, तो we need to install specific drivers for this. ओके, एक्सटर्नल डिवाइसेस, हम प्रिंटर अटैच कर रहे हो तो प्रिंटर के ड्राइवर्स आपको इंस्टॉल करने होते हैं आपके सिस्टम में. ओके, तो डिवाइस कम्युनिकेशन
कैसे होता है? थ्रू द रिस्पेक्टिव ड्राइवर्स. ओके, सो इट डज द फॉलोइंग एक्टिविटीज फॉर डिवाइस मैनेजमेंट. तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म करता है फॉर डिवाइस मैनेजमेंट? इट कीप ट्रैक्स ऑफ ऑल द डिवाइसेस. हर एक डिवाइस का ट्रैक रखता है ऑपरेटिंग सिस्टम. द प्रोग्राम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टास्क इज नोन एज आईओ कंट्रोलर. ओके, जैसे प्रोसेस के लिए था ट्रैफिक कंट्रोलर, यहाँ पे है आईओ कंट्रोलर. ये सारी चीजें कितने प्रिंटर इंस्टॉल है, कितने माउस है, कितने कीबोर्ड है, कितनी रैम है, ये सारे जो भी आपके डिवाइसेस है एक्सटर्नल, आप उसका ट्रैक रखता है आईओ कंट्रोलर. ओके, इट डिसाइड विच प्रोसेस गेट्स द डिवाइस व्हेन एंड हाउ फॉर हाउ मच टाइम. अगेन ऑपरेटिंग सिस्टम विल डिसाइड कि कौन सी प्रोसेस को डिवाइस मिलेगा और कितने टाइम के लिए मिलेगा और कब मिलेगा. ये सारी इंफॉर्मेशन रखेगा आपका आईओ कंट्रोलर. That is a part of your operating system. Okay, again it will allocate the device in most efficient way and it allocates the device. Okay, तो किसी प्रोसेस को रिक्वायरमेंट है तो ये allocate करता है डिवाइसेस, और किसी प्रोसेस को रिक्वायरमेंट नहीं है, उसका एग्जीक्यूशन खत्म हो रहा है, तो इट विल डीअलोकेट द डिवाइस फ्रॉम दैट. Then file management. Okay, so file system is normally organized into directories for easy navigation and usage. Okay, तो फाइल सिस्टम हम यूज करते हैं, हमें पता है कि हम फोल्डर्स में फाइल सेव करते हैं. ओके, सो फोल्डर्स को ही हम क्या बोलते हैं? डायरेक्टरीज बोलते हैं यहाँ पे. ओके, सो फाइल सिस्टम इज नॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड इनटू डायरेक्टरीज फॉर इजी नेविगेशन एंड यूसेज. ओके, सो दीज डायरेक्टरीज में कंटेन फाइल्स एंड अदर डायरेक्टरीज. ओके, तो इस डायरेक्टरी में दूसरी फाइल्स भी हो सकती है या दूसरी डायरेक्टरीज भी हो सकती है. तो again operating system will perform some kind of activities. Okay, it will keep the tracks of information, location, uses, status, etc. Okay, and the collective facilities are known as file system. तो ऑपरेटिंग सिस्टम सारी इंफॉर्मेशन रखेगा, लोकेशन कहाँ पे वो फाइल, उसका यूज क्या है, उसका स्टेटस क्या है, ये सारी चीजें, इन सारी चीजों की इंफॉर्मेशन रखेगा ऑपरेटिंग सिस्टम. एंड द कलेक्टिव फैसिलिटीज आर नोन एज एन file system. Okay, again operating system will decide who gets the resources, which file will get resources. Okay, it will allocate the resources, it will deallocate the resources for that particular file, and that is nothing but your file management. Okay, again next function is security. ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करती है? सिक्योरिटी भी मैनेज करती है. तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पासवर्ड की फैसिलिटी देता है. बाय मींस ऑफ पासवर्ड एंड सिमिलर अदर टेक्निक्स इट प्रिवेंट्स अनऑथराइज्ड एक्सेस टू प्रोग्राम्स एंड डेटा. ओके, जैसे कि हम आपके सिस्टम अपनी जो सिस्टम होती है उसको पासवर्ड, यूजर नेम एंड पासवर्ड डालते हैं. ओके, सो बाय दैट मींस the operating system have provided the security. Okay, now control over the system performance. Okay, so recording the delays between the request for a service and response from the system, that will be your system performance. Okay, मतलब क्या? एक यूजर ने एक रिक्वेस्ट भेजी है, ओके, और कितनी देर बाद उसका रिस्पांस आया है फ्रॉम द सिस्टम, दैट डिले विल बी योर सिस्टम परफॉर्मेंस. तो वो अगर ज्यादा डिले आता है तो आपके सिस्टम का परफॉर्मेंस लो है, अगर वो डिले कम आता है then your system performance is greater. Okay, so you can calculate your system performance by using your operating system. Okay, again the job accounting, the next function is job accounting. Job accounting means what? The keeping track of time and resources used by various jobs and users. Okay, तो job मतलब दूसरे task. Okay, तो इनके बीच में track of time and resources used by these jobs and different users, that will be your job accounting. तो ये क्या करता है? job accounting operating system basically क्या करता है? job accounting perform करता है by keeping your track of time and resources used by your users or the jobs. Okay, again the error detecting aids. तो अगर फॉर एग्जांपल कोई प्रॉब्लम आता है आपके सिस्टम में, तो इट विल प्रोवाइड इन ट्रबल शूटिंग लाइक मैसेजेस. ओके, सो द ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प्स अस टू डिटेक्ट द errors. Okay, so production of dumps, traces, error messages and other debugging and error detecting aids are provided by your operating system. Okay, now third one is coordination between other software and users. So coordination and assignment of compilers, interpreters, assemblers and other software to the various users of the computer system. तो ये जो हमारे बेसिक सॉफ्टवेयर है, कंपाइलर, इंटरप्रीटर, असेंबलर और कोई और सॉफ्टवेयर, इनको भी क्या करता है? ये कोऑर्डिनेशन परफॉर्म करता है. कंप्यूटर सिस्टम के यूजर जो है उनके साथ इसका कोऑर्डिनेशन परफॉर्म करता है. फॉर एग्जांपल किसी यूजर को चाहिए असेंबलर, देन इट विल कम्युनिकेट दैट software with your user. Okay, so this is nothing but your coordination between other software and users. Okay, so these are the functions of your operating system. Any doubt in this? Yes. No, ma'am.
So the memory management, processor management, device management, file management, security, control over the system performance, job accounting, error detecting aids, coordination between other software and users. These are the functions of your operating system. I think we have discussed all of this. Okay, so the next point is operating system services. जैसे functions है operating system के, तो वो कुछ services भी provide करता है. Okay, so operating system provides services to both user and to the programs. मतलब ये क्या करता है, सॉफ्टवेयर को भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है और यूजर को भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है. ओके, सो इट प्रोवाइड्स प्रोग्राम्स एंड इन्वायरमेंट टू एग्जीक्यूट. ओके, तो ये इन्वायरमेंट देता है प्रोग्राम्स को टू एग्जीक्यूट. ओके, इट प्रोवाइड्स यूजर्स द सर्विसेज टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम्स इन अ कन्वीनियंट मैनर. ओके, तो ये क्या करता है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है टू एग्जीक्यूट योर प्रोग्राम्स इन अ कन्वीनियंट मैनर. Okay, so there are some services provided by your operating system like program execution, input output operations, file system manipulation, communication, error detection, resource allocation and protection. Okay, so let's discuss one by one. The first one is what? Program execution. Okay, so there are some major activities of your operating system with respect to program management. ओके, तो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे हेल्प करेगा. पहले ये क्या करेगा, आपके प्रोग्राम को मेन मेमोरी में लोड करेगा, उसके बाद एग्जीक्यूट करेगा उस प्रोग्राम को, उसके बाद प्रोग्राम का पूरा एग्जीक्यूशन हैंडल करेगा, लिंकिंग परफॉर्म करेगा, वेरिएबल को पास करना है या कुछ और चीजें करनी है, दैट विल बी आल्सो डन बाय योर ऑपरेटिंग सिस्टम. अगेन इट प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म फॉर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन. इफ दैट प्रोसेस वांट्स टू कम्युनिकेट विद अदर process, then also that communication will be handled by your operating system. So these are the activities which are performed by your operating system for the program execution. Okay, synchron करता है प्रोग्राम को, पहले तो उससे लोड करता है प्रोग्राम को मेन मेमोरी में, पूरा एग्जीक्यूशन ये क्या करता है, हैंडल करता है. Okay, so next service is what? IO operation, input output operation. So an operating system manages the communication between the user and the device drivers. IO अगर है तो आपको पहले थिंग आनी चाहिए डिवाइस ड्राइवर्स. ड्राइवर्स आपको इंस्टॉल करनी ही है. Okay, because input output devices are the external devices, printer, scanner, these are the external devices. अगर ये devices आपको आपके सिस्टम के साथ यूज करने तो आपको उनके स्पेसिफिक ड्राइवर्स इंस्टॉल करने पड़ते हैं. ओके, तो ये जो यूजर है और आपके डिवाइस ड्राइवर है, इनके बीच में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने का काम करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, so input output operation means what? Read or write operation with any file or any specific IO device. ओके, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन मतलब क्या? फॉर एग्जांपल स्कैनर, स्कैनर से हम क्या करते हैं, डेटा रीड करते हैं. फॉर एग्जांपल प्रिंटर, प्रिंटर से हम क्या करते हैं, डेटा राइट करते हैं, यूजर के लिए डेटा राइट करते हैं. साउंड, साउंड also we are writing something, we are sending the output to the external environment. Okay, sounds are also the output devices. Okay, so input output operation are nothing but your read or write operation with any file. फाइल में हम डेटा लिख सकते हैं, मतलब स्कैन करके किसी जेपीजी फाइल में रख दिया, दैट इज द ऑपरेशन विथ योर फाइल. और प्रिंटर पे डेटा भेज दिया, मतलब हमने क्या किया है, राइट किया है टू द in output device. Okay, so this is nothing but your IO operation. Then operating system provides access to the required IO device when required. Okay, तो जब भी किसी भी यूजर को जरूरत होगी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की, then operating system provide that access. Okay, immediately. So these are the services which are provided by your operating system for the input output operation. So next one is what? File system manipulation. Okay, we know that what is a file system. Okay, डायरेक्टरीज के अंदर फाइल्स रहती है और अदर डायरेक्टरीज रहती है. ओके, तो मैनिपुलेशन किस तरीके से हम कर सकते हैं. ओके, फॉलोइंग आर द मेजर एक्टिविटीज ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू फाइल मैनेजमेंट. ओके, सो प्रोग्राम नीड्स टू रीड अ फाइल और राइट अ फाइल. प्रोग्राम में हम क्या कर सकते हैं, फाइल को रीड कर सकते हैं और फाइल में लाके लिख सकते हैं. ओके, सो द ऑपरेटिंग सिस्टम गिव्स द परमिशन टू द प्रोग्राम फॉर ऑपरेशन ऑन फाइल. जैसे कि हमने लेक्स के प्रोग्राम में देखा था, आर मोड में हमने ओपन किया, मतलब रीड मोड में हमने फाइल ओपन की है, तो वो क्या है, एक्चुअली परमिशंस है कि आप अभी रीड कर सकते हो. डब्ल्यू अगर लिखा तो आप एग्जीक्यूट सॉरी राइट कर सकते हो. एक ई अगर लिखा वहां पे तो एग्जीक्यूट कर सकते हो. तो फाइल के साथ आप तीन टाइप के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो. ओके, सो दीज परमिशंस आर वेरीज फ्रॉम रीड ओनली, रीड राइट, डिनाइड एंड सो ऑन. मीन्स व्हाट? रीड ओनली अगर फाइल का परमिशन सेट है तो हम बस उस फाइल को रीड कर सकते हैं. रीड एंड राइट है तो हम रीड भी कर सकते हैं और उस फाइल में जाके कुछ अपडेट भी कर सकते हैं. ओके, डिनाइड मतलब क्या? कुछ भी नहीं कर सकते, एंड सो ऑन, और भी कोई ऑपरेशन परमिशंस अवेलेबल होती है. ओके, सो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स एन इंटरफेस टू द यूजर टू क्रिएट और डिलीट फाइल्स. तो मैनिपुलेट करना है फाइल सिस्टम में, मतलब उसमें अपडेशन करना है, तो हम फाइल सिस्टम में जाके
फाइल सिस्टम को फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं. Okay, with the help of your file system manipulation. After that, we can create or delete your directories also. Okay, so operating system provides an interface to the user to create and delete directories also. Okay, operating system also provides an interface to create the backup of a file system. Okay, तो आपके file system का backup क्रिएट करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी या फैसिलिटी या सर्विस ऑपरेटिंग सिस्टम आपको प्रोवाइड करता है. ओके, सो फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन में आपको बस कौन सी परमिशंस होती है, आप क्या क्या कर सकते हो, कैसे मैनिपुलेट कर सकते हो फाइल सिस्टम को, वो आपको यहाँ पे लिखना है. ओके, सो नेक्स्ट सर्विस विच इज प्रोवाइडेड बाय योर operating system is communication. Okay, so communication is what? Following are the major activities of an operating system with respect to communication. So two process often require data to be transferred between them. Okay, तो दो प्रोसेस क्या हो सकती है, उनको डेटा एक्सचेंज करना है. Okay, so both the process can be on one computer or on different computer but are connected through a computer network. तो ये जो प्रोसेस है जिनको डेटा एक्सचेंज करना है, ये सेम कंप्यूटर पे भी हो सकती है, डिफरेंट कंप्यूटर पे भी हो सकती है. अगर डिफरेंट कंप्यूटर पे है तो वो नेटवर्क से क्या है, कनेक्टेड है. Okay, so communication may be implemented by two methods. The first one is what? Shared memory और बाय द मैसेज पासिंग. तो शेयर्ड मेमोरी क्या होती है, एक पार्ट होता है मेमोरी का जो कि शेयर्ड होता है, मतलब दोनों प्रोसेस उस मेमोरी से डेटा एक्सेस कर सकते हैं. ओके, और द बाय मींस ऑफ मैसेज पासिंग. मैसेज पासिंग मतलब क्या, फ्रॉम वन प्रोग्राम वन प्रोसेस दैट डेटा इज ट्रांसफर टू द अदर प्रोग्राम. ओके, थ्रू द मैसेज पासिंग टेक्निक. So in this way, by implementing these two methods, we can establish a communication between two processes, and that is the service which is provided by your operating system. Next one is error handling. So errors can occur anytime, anywhere. Okay, an error may occur in CPU, in input-output devices, or in the memory hardware. तो error कभी भी आ सकती है, कहीं भी आ सकती है. CPU में आ सकती है, input-output devices में आ सकती है, memory में आ सकती है. Okay, so there are following activities which are performed by your operating system to handle the error. Okay, so OS constantly checks for the possible errors. तो OS क्या करता है, it constantly checks for the errors. The OS takes an appropriate action to ensure correct and consistent computing. Okay, तो ये अगर एरर आपको डिटेक्ट होता है तो ये प्रॉपर एक्शन या कंसिस्टेंट कंप्यूटिंग जो है वो परफॉर्म यहाँ पे करता है. अप्रोप्रिएट एक्शन टू इंश्योर यूर करेक्ट एंड कंसिस्टेंट कंप्यूटिंग, ये स्टैब्लिश करने के लिए ये OS क्या करता है, प्रॉपर एक्शन परफॉर्म करता है. Okay, next one is what? Resource management. So in case of multi-user or multitasking environment, resources such as main memory, CPU cycles and file storage are to be allocated to each user or job. तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर आप मल्टी इन्वायरमेंट यूज करते हो, मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट, और यू कैन से द मल्टी यूजर मल्टी टास्किंग इन्वायरमेंट अगर यूज करते हो, तो रिसोर्सेस जो है जैसे कि मेन मेमोरी, CPU, फाइल्स, ओके, सो दीज आर अलोकेटेड टू ईच यूजर और जॉब. तो ये जो रिसोर्सेस है वो हम क्या कर सकते हैं, यूजर को और किसी भी टास्क को अलोकेट कर सकते हैं. ओके, तो सो देन वी नीड टू मैनेज दिस रिसोर्सेज ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल एक ही फाइल 4 रिसोर्सेज अलोकेट नहीं कर सकती या ज्यादा टाइम के लिए वो अलोकेट करके नहीं रख सकती. ओके, सो हमें ये सारी चीजें क्या करनी है, मैनेज करनी है. तो उसमें आपको OS हेल्प करता है. तो OS मैनेजेस ऑल द काइंड ऑफ रिसोर्सेज यूजिंग शेड्यूलर्स. तो OS के पास क्या है, शेड्यूलर्स है. तो किस प्रोसेस को कितने टाइम के लिए रिसोर्स चाहिए, ओके, तो ये रिसोर्स मैनेजमेंट भी परफॉर्म बाय योर OS. Okay, so CPU scheduling algorithms are used for better utilization of CPU. Okay, so for example we have 10 processes and all are requiring CPU. Okay, तो CPU को शेड्यूल करना है, तो कौन सी प्रोसेस कितने टाइम के लिए यूज करेगी, तो ये आपको शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स बताएंगे जो कि आपको आगे देखने, उसके प्रॉब्लम्स भी आपको सॉल्व करने हैं CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स के. Okay, so in this way the operating system manages your resource management. Okay, the last services which is provided by your operating system is nothing but the protection. Okay, so the following are the major activities of an operating system with respect to protection. Okay, so the OS ensures that all access to the system resources is controlled. Okay, तो जो भी सिस्टम रिसोर्स के साथ जो एक्सेस है वो कंट्रोल किया जाता है बाय द OS. Then the OS ensures that external input output devices are protected from invalid access attempts. Okay, तो जो भी external input output devices है, okay, that also protected from the invalid access. Okay, the OS provides authentication feature for each user by means of password.
ओके तो सिस्टम के साथ हम पासवर्ड भी यूज करते हैं, यूजर नेम पासवर्ड, so that OS your protect your machine also. Okay, so in this way we have completed the services of your operating system. So program execution, IO operations, file system manipulation, communication, error detection, resource allocation and protection. Okay, so program execution में क्या आएगा, प्रोग्राम को लोड करो, प्रोग्राम के सारे एग्जीक्यूशन को हैंडल करो, ओके जिसकी रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल असेंबलर कंपाइलर वो भी एलोकेट कर दो। आईओ ऑपरेशन में आपको इंपॉर्टेंटली ड्राइवर्स के बारे में लिखना है कि अगर आप आईओ ऑपरेशन करना चाहते हो, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस, देन यू हैव टू एस्टैब्लिश द कम्युनिकेशन बिटवीन द यूजर एंड द डिवाइस ड्राइवर्स एंड लाइकवाइज। तो फिर उसके बाद आपको ट्रैक रखना है कौन सी प्रोसेस कितने टाइम के लिए यूज करेगी, लाइक दैट। फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन, फाइल के बारे में आपको लिखना है, फाइल के साथ परमिशंस रहती है, रीड राइट, रीड ओनली, रीड राइट, डिनाइड, ओके। और हम क्रिएट कर सकते हैं फाइल को, डिलीट कर सकते हैं, डायरेक्टरीज को भी हम क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। इस तरीके से हम फाइल सिस्टम को मैनिपुलेट कर सकते हैं। कम्युनिकेशन, दो प्रोसेस के बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने का काम आपका ओएस करेगा, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन अलाउ करेगा हमें, ओके। सो ये सारी चीजें आपको कम्युनिकेशन में लिखनी है। एरर डिटेक्शन में क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, कांस्टेंट एरर, पॉसिबल एरर्स के लिए चेक करता है। उसके बाद एक प्रॉपर कंप्यूटिंग, कंसिस्टेंट कंप्यूटिंग और अप्रोप्रिएट एक्शन, करेक्ट एक्शन परफॉर्म करता है। उसके बाद रिसोर्स अलोकेशन में क्या करता है, ओके तो बाकी जो रिसोर्सेस है, इनपुट आउटपुट रिसोर्सेस, तो उनको जो इनवैलिड एक्सेस है उसको कंट्रोल करने का काम आपका रिसोर्स अलोकेशन करता है। उसके बाद सीपीयू शेड्यूलर्स के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। बहुत सारे हार्डवेयर से उनको बहुत सारी प्रोसेसेस रिक्वायर कर रही है, तो किस प्रोसेस को कितने टाइम के लिए रिसोर्स को अलोकेट करना है, ये सारी चीजें हैंडल बाय योर ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड फाइनली प्रोटेक्शन, बाय मींस ऑफ यूजर नेम एंड पासवर्ड योर सिस्टम कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। Okay, any doubt in these features or services provided by your operating systems? No, Yes. ma'am, no doubt. Okay, so I think this is self understanding part. आप एक बार रीड भी करोगे तभी पता चले, इसलिए मैंने थोड़ा फास्ट कवर किया है। एक प्योरली थ्योरी है एंड ऑल थिंग्स आर नोन टू यू। आपको पता है कैसे होता है। जो नई नई चीजें है दैट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इन ब्रीफ, बट जो भी आपको पता है, फाइल आपको पता है, फाइल सिस्टम क्या हो सकती है, फोल्डर्स एंड फाइल्स एंड ऑल दैट। ओके सो दैट्स आई हैव कवर्ड इन द फास्टेस्ट वे। सो उसके आगे का जो ये यूनिट बहुत बड़ा है और बहुत सारी चीजें हैं इस यूनिट में पढ़ने के लिए, ओके और इसमें प्रॉब्लम्स भी बहुत है। 4 टाइप्स के एल्गोरिदम्स है और चारों के डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स भी है, वो आपको आते हैं एग्जाम में। सो आपको ज्यादा टाइम वहाँ पे लगने वाला है, ओके। सो ये जो थ्योरी पार्ट है दैट विल बी कवर्ड बाय मी द इन द फास्टेस्ट वे। So I think we have finished the functions of operating system and the services of your operating system. Okay. So the next is what? System structure, और उसमें आपको स्टडी करना है layered approach. Okay, just cover. Let's cover this part only, and then we will stop. ओके सो द ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर अभी हमें यहाँ पे पढ़ना है, ओके और उसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स है, लेकिन सिलेबस में बस आपको क्या है, लेयर्ड अप्रोच है, ओके तो आपकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लेयर्स से बनी हुई है, ओके सो योर ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ लेयर्स, और इन लेयर्स को हम लेवल्स भी बोल सकते हैं, ओके ईच बिल्ड ऑन द टॉप ऑफ लोअर लेयर। तो पहले एक लोअर लेयर है, उसके बाद दूसरी लेयर है, तीसरी लेयर है, लाइकवाइज, ओके सो द बॉटम लेयर 0 इज द हार्डवेयर, सबसे जो लोएस्ट लेयर है उसे हार्डवेयर बोलते हैं, ओके एंड द हाईएस्ट लेयर इज नथिंग बट योर यूजर इंटरफेस, ओके और इनके बीच में डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर्स अवेलेबल है, ओके सो विथ मॉड्यूलरिटी लेयर्स आर सिलेक्टेड सच दैट ईच यूजेस फंक्शंस और ऑपरेशंस एंड सर्विसेज ऑफ ओनली लोअर लेवल लेयर्स, ओके मतलब क्या है, हमने इस तरीके से इन लेयर्स को सिलेक्ट किया है सो दैट ईच लेयर विल टेक फंक्शंस और द सर्विसेज फ्रॉम द लोअर लेयर ओनली, ओके तो अपर लेयर से आप कुछ सर्विसेज एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते। आप हमेशा लोअर लेयर से क्या कर सकते हो, जो भी उसके फंक्शन है या सर्विसेज है उनको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, यूज कर सकते हो या सिलेक्ट कर सकते हो, यू कैन से। सो दिस इज द डायग्राम। तो आप देख सकते हो सब लेयर 0 है वो है हार्डवेयर, उसके बाद लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, बहुत सारे लेयर्स हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही नहीं है, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, बहुत सारे एग्जांपल्स है ऑपरेटिंग सिस्टम के। अगर इनमें से लेयर्ड अप्रोच जो है तो उनमें 2 लेयर्स कंपल्सरी है, दैट इज लेयर 0 एंड लेयर n। लेयर 0 इज ऑलवेज हार्डवेयर एंड लेयर n इज ऑलवेज अ यूजर। इनके बीच में नंबर ऑफ लेयर्स अवेलेबल है,
ओके और हर एक लेयर इस तरीके से सिलेक्ट की गई है सो दैट इट कैन एक्सेस द सर्विसेज और द फंक्शंस फ्रॉम लोअर लेयर ओनली. तो लेयर 1 will accept the services from functions, sorry, services from lower layer only. Okay, layer 1 will take, or layer 1 will access the services and functions from layer 0 only. Okay, again layer 2 will access the services and the functions from the layer 0 and layer 1 only. Okay, likewise we have layered approach. Okay, so in that was a layered approach, and this is the example of that layer approach. तो सबसे नीचे जो है वो हार्डवेयर है, उसके बाद है लेयर 1 प्रोसेसर शेड्यूलिंग. तो प्रोसेसर शेड्यूलिंग विल एक्सेप्ट द फंक्शंस एंड सर्विसेज फ्रॉम द लोअर लेयर, दैट इज हार्डवेयर. अगेन उसके ऊपर है मेमोरी एंड आईओ डिवाइस मैनेजमेंट. अगेन इट विल एक्सेप्ट द सर्विसेज एंड फंक्शन फ्रॉम द लोअर लेयर. उसके बाद है फाइल सिस्टम, उसके बाद है सिस्टम सर्विसेज, एंड फाइनली एप्लीकेशन प्रोग्राम. और एप्लीकेशन प्रोग्राम के ऊपर रहता है हमारा यूजर. ओके, यूजर आर डीलिंग विथ अवर सिस्टम थ्रू द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स. Okay, so this is the example of your layered approach. Any doubt in layered approach? No, ma'am. Yes. Okay, so next topic is types of your operating system. Okay, so that will be we discuss in the next lecture. Just a second, let me download that attendance sheet. Okay, at the lecture 12:15 का जो lecture है, that will be conducted by your Manisha Galfade ma'am, and ma'am will take the remaining third unit part. Okay, जो भी आपका TOC related part है, that will be taken by your TOC teacher Manisha Galfade ma'am. So attend that lecture. So officially we will complete the unit number 3 also. So is there any doubt till now in unit number 4?